जय गुरु जी। कमांडर अंकल प्लीज बाकी संगत को म्यूट कर दीजिए। जय गुरु जी, मेरी आवाज आ रही है? सोनिया आंटी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी ओके फाइन, आप लाइव हो। ओके ऑसम। जय गुरु जी का शुक्राना। इतना खूबसूरत सुंदर सतगुरु हमें मिला है और वी फील बियॉन्ड लकी। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले of course besides Guruji, I want to thank Sonia auntie because this is the forum where it all started, and I still remember it was, I think, the 10th of May that first time I ever did a live satsang like this. And the backstory behind this is that Sonia auntie, she apparently reached out to my father. Then my father said, aise aise unka phone aaya tha, you should call her back. So when I spoke to her and she said, "आप live satsang करोगे?" I thought, it's so awkward. क्या हम phone को देखकर उसमें सत्संग करेंगे? We'd never done anything like this. गुरुजी के time पे बहुत ही I'm going to lower the volume because I'm connected on a different forum as well. Okay, sorry about that. She said, "Aap satsang share karoge, live satsang," and I had no concept of, what a live satsang is. And it felt weird because I thought कि phone को देखकर हम बोलना शुरू करेंगे, and we'd never been accustomed to anything like this. गुरुजी के time पे बहुत ही simple format होता था, थोड़ी सी संगत होती थी. गुरुजी would hand pick, किसी को इशारा करके कह देते थे कि सत्संग सुनाओ, and that used to be a divine blessing because Guruji would say satsang sunne wale ka kalyan, satsang karne wale ka kalyan, and Guruji would also say ki short mein sunaya karo. So now, with the changing times and especially with this pandemic, hitting this entire world, I think Guruji's parivar has shrunk. It's come closer. Geographic boundaries don't mean anything. And now I think during these times, it is all the more important that we do our Guruji's Gungan. We spread his Mahima, we spread his love, we spread his light. So that जो benefit हमें मिला है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गुरुजी का दरबार दिखाएं, वो हमारी सेवा है. And uske baad, whatever is the connection between that particular soul and Guruji, it's up to them. It's between that soul and Guru Sahib. हमने अपना फर्ज निभा दिया कि हमने गुरुजी का दर दिखा दिया, गुरुजी के बारे में बता दिया, हमने अपनी सेवा कर ली. उसके बाद कौन जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, कितना जुड़ता है, not our worry. और गुरुजी ये भी कहते थे कि जे 10 के लेता या मंग के लेता तो की लेता. सो गुरुजी तो जानी जान है, हम उनको क्या बता सकते हैं. एंड सिंपल चीज़ें जो उन्होंने हमें बोली कि मांगो नहीं मन्नो. दैट मीन्स we don't even know what is good for us. We think we know, but we don't, because as mere mortals, we can only see up to a particular point. What lies beyond that, only Guru Sahib can see. Only Guru Sahib can decide what is good for us. So we always, when we talk about surrender, it is about resigning to his will, resigning to his way, resigning to his time. And granted, that's not easy, but that is where, the surrender comes in. और गुरुजी ये भी कहते थे कि विश्वास करो फिर नज़ारे देखो. तो विश्वास तो इसी को कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी की डोर गुरुजी के हाथ में दे दी, एंड उसके बाद गुरुजी को बोलो कि गुरुजी steer us on the right path, reel us in when you need to, and
माई लाइफ, मेरी जिंदगी की हर सांस आपके नाम पे है, आपको अर्पण है। और अगर आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो वो कभी नहीं छूटेगा। हम तो इंसान है, अगर हम पकड़ेंगे तो शायद वो डोर हाथ से निकल जाए। और सबसे बड़ी अरदास तो यही है कि गुरुजी आप अपने चरणों में लगाया है, तो इस जन्म में और हर जन्म में, अगला पिछला जितने भी हैं वो गुरुजी जानते हैं, अपने से कभी दूर ना करें गुरुजी। So on this special day, getting this opportunity to relive some of the glorious moments that I've spent with Guruji, it's such an honor, it's a privilege. And again, back to je manke lita teki lita. So मेरा बर्थडे वाले दिन गुरुजी के साथ एक खास पैक्ट है, एंड दैट स्टार्टेड इन द ईयर 2000। आई थिंक हमने लेट 90s में गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, और विद इन द फर्स्ट ईयर आई नोटिस दैट sometimes on special occasions people would give a box of chocolates, just as a mark of respect and gratitude for Guruji, just to express our love. Otherwise हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं, और गुरुजी हमसे क्या लेंगे, हम कुछ देने के काबिल ही नहीं है। बट आई वुड नोटिस some people do that, और मेरे भी मन में आया कि चलो अगला बर्थडे आएगा तो गुरुजी को मैं भी चॉकलेट्स चढ़ाऊंगी। सो सन 2000 की बात है, 12 फरवरी, जन्मदिन वाले दिन मैंने भी चॉकलेट्स का डब्बा गुरुजी के लिए लिया और संगत में साथ में रखा। तो छुट्टी लेते टाइम जब गुरुजी ने ऐसे करके इशारा किया और घर जाने की आज्ञा दी, तो माथा टेकते टाइम मैंने गुरुजी के चरणों में वो चॉकलेट्स रखी। एंड आई सेड, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है और मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। एंड ही स्माइल्ड एट मी, और उसके बाद उन्हें चॉकलेट्स का डब्बा ऐसे लिया और साथ में रोमा आंटी बैठी थी, उनको पकड़ा दिया। सो ही हैंडेड ओवर द चॉकलेट्स टू हर। तो मेरे को लगा कि शायद गुरुजी चॉकलेट्स खोलेंगे, बांटेंगे, प्रसाद के तौर पे एक पीस मुझे भी मिल जाएगा। He did not do that. Instead, he was wearing maroon जुत्तीज। भरी सभा में पूरी संगत के सामने जो उन्होंने पैरों में मरून कलर की जुत्तीज पहनी हुई थी, गुरुजी took those जुत्तीज, he removed it and he said, "एले चक तेरा प्रसाद।" और मैं तो सुन, आई वॉज लाइक वाओ, कहाँ मैं एक पीस चॉकलेट का मांग रही थी, और यहाँ गुरुजी ने जो जुतियां खुद पहनी हुई थी पूरे संगत के सामने वो जुतियां निकालकर ही सेड, "एले चक तेरा प्रसाद।" आई स्टिल रिमेम्बर कि लाइन में पीछे मेरे पापा थे, एंड माय फादर सेड कि महाराज इनको आप ना बस इसके सर पे रख दो। एंड मैंने उसी टाइम उन जुतियों को लिया और चूमा और ऐसे करके अपने सर पे लगाया। एंड दैट्स प्राइसलेस। सो मेरे बर्थडे की अहमियत और एक्साइटमेंट सिंस दैट डे इतनी बढ़ गई, बिकॉज आई जस्ट फील दैट्स अ स्पेशल डे वेयर आई शेयर माई मोमेंट, माई कनेक्ट विद गुरु साहेब इन अ वेरी यूनिक एंड अ वेरी स्पेशल वे। और ब्लेसिंग्स तो अनगिनत हैं, बिकॉज जब फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, तो उन्होंने इस सोल, आई डोंट इवन आइडेंटिफाई एज कि मैं आरती हूँ, या बिकॉज हमारा कनेक्शन गुरु साहब के साथ पता नहीं किस जन्म से है। ये तो हम इस जन्म में बोलते हैं कि अच्छा हम 20 साल 25 साल पहले जुड़े और वट एवर, बट वी डोंट नो कि कितने जन्म से किस फॉर्म में हमारी सोल गुरुजी के साथ कनेक्टेड है। And I just feel that he has showered so many blessings that I cannot even account for. I cannot even describe. Words can't do justice. When people say गुरुजी के बारे में बताओ, तो ऐसे लगता है कि वो अल्फाज कहाँ से लेकर आओ, क्योंकि गुरुजी तो एक एहसास है। गुरुजी इज अ फिनोमेना जिसको हमें महसूस करना है। कौन से वर्ड्स लेकर हम गुरुजी का बखान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट हम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंसेस, एंड एक्सपीरियंसेस भी वो जो आप बीती है, सो दैट विद वन इंटेंट के
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरुजी के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण मिले। बिकॉज इस कलयुग में महाशिव ने जन्म लिया सिर्फ हम हमारी इंसानों की मनुष्य जाति का कल्याण बख्शने के लिए। एंड व्हेन गुरुजी वाज इन हिज चोला ही वुड वेरी ऑफ्टन से नई संगत लेकर आओ, नई संगत लेकर आओ। एंड वी ह्यूमन बींग्स आर सो सेल्फिश। हमें लगता था कि अगर एम्पायर स्टेट में अगर 30 40 50 लोग बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता था सारी दिल्ली तो यहाँ बैठी है, और किसको बताएं। और इतनी छोटी सोच कि when Guruji would say that लोगों को लेकर आओ ताकि मैं कल्याण कर सकूं क्योंकि मेरे चले जाना है, तो हमें लगता था कि गुरुजी पंजाब चले जाएंगे। और देन ही वुड ऑल्सो से कि देखते रहना लाइनें लग जाएंगी और जो मेरे साये से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। और लाइनें लग जाएगी का तो मतलब हमें समझ ही नहीं आया था। हमें लगता था कि अच्छा अभी 30 बैठे हैं तो 300 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होएगा। अगेन स्मॉल थिंकिंग, राइट? We did not know, we could have never imagined that Guruji is going to become a global phenomena. Worldwide, घर घर में गुरुजी का गुणगान होएगा, सत्संग होएगा। और हर जो बात गुरु साहिब ने बोली, चाहे कैजुअली बोली, दैट हैज बिकम लाइक दैट इज पत्थर की लकीर एंड इट्स कमिंग ट्रू। गुरुजी had said कि बड़ा माड़ा समय आने वाला है और हमें तब भी नहीं समझ आया। एंड 2020 for almost the entire world, it's been a tough time. And life में ups and downs तो आने ही है, whether it's health say related, whether it's finances, whether it's relationships, or all of the above. Just because we are in Guruji's fold does not mean that life will be a bed of roses. It won't. But the biggest blessing is the assurance that Guru Sahib has got your back. वो जो माइंड, जो पॉजिटिव माइंड हो जाता है ना कि लाइफ में कोई भी चुनौती आए, कोई भी चैलेंज आए, कोई अप्स एंड डाउन्स आए, तुम्हें ये पता है दैट योर महाराज महाशिव हैज गॉट योर बैक, सो यू डोंट हैव टू वरी। और अब चोट आती है, एक्सीडेंट होता है, आप गिरते हो तो माइंडसेट चेंज है। आप क्या कहते हो कि थैंक यू गुरुजी, हम बच गए, इट कुड हैव बीन वर्स। कोई बहुत बड़ा कष्ट आया होगा, गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। सो ये हृदय परिवर्तन, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग, ये कहाँ से मिलती है? ये आपका गुरु आपको देता है। योर गुरु इज लाइक अ टीचर एंड व्हेन ही टेक्स यू इन हिज फोल्ड, वो कहते हैं ना डर्टी वेसल, उसको अंदर से गुरुजी चमकाना शुरू करते हैं। एंड दैट्स व्हाई ईच डे विद योर गुरुजी इज अ डे फॉर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। एंड वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, बिकॉज शायद हमें इस चीज का खुद भी एहसास नहीं है कि हमें क्या मिल गया है, क्या अनमोल खजाना है। एंड दैट इज बिकॉज इन कलयुग गुरुजी हैज मेड थिंग्स वेरी सिंपल। गुरुजी ये भी कहते थे कि कलयुग में रब मिलना बहुत आसान है। अगर आप शिव पुराण जैसी कोई किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितनी वो रिचुअलिस्टिक बुक, कितने सालों का तप, एंड टफ पेनेंस करने के बाद आपको शिवलोक प्राप्त होता या शिव जी के दर्शन मिलते। और कलयुग में तो महाशिव ऐसे ही मिल गए, और वो भी गुरुजी ने इतना आसान हम सबके लिए कर दिया, बिकॉज आवर गुरु इज अ रसिक वैरागी गुरु। जिंदगी कैसे जीते हैं ये गुरुजी ने हमें सिखाया है। गुरुजी ने सारे कर्म कांड से हम सबको दूर रखा, डिस्करेज किया। in fact he taught us in a very practical way कि कर्म बलवान है। और गुरुजी काफी अक्सर कहा करते थे कि कर्म तो कटने हैं। एंड जस्ट बिकॉज वी आर इन दिस फोल्ड, हम उनके छत्र छाया में हैं, सो आवर गुरु टेक्स 90% ऑफ आवर कष्ट, आर karmas upon himself। हम वो 10% काटते काटते ही हमारी हाय तौबा हो जाती है।
सो इमेजिन कि क्या हमें प्लेटर पे सब कुछ मिल रहा है, कोई कोई रिचुअल्स नहीं, कोई सुपरस्टिशंस नहीं, कोई कर्म कांड नहीं। क्या है गुरुजी का फॉर्मेट? बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं। येट हम वो फॉलो करने में भी रोज चूक जाते हैं। और जो बातें उन्होंने बोली, इतनी प्रैक्टिकल, इतनी सरल, and it helps to remind ourselves, remind each other। जब आप शब्द कीर्तन सुनते हो, कितना मीनिंग होता है उस शब्द में। एंड when we started going to गुरुजी, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ आती थी। और उसका भी गुरुजी ने कैसे बोला कि शब्द मैंने आपको सुनने को कहा है, समझने को नहीं। So today you see people from all walks of life who come, sit in the mandir, sit in the satsang, listen to the shabads, and they say that music has no language. It provides a lot of peace, a lot of solace just by listening, right? एंड इफ यू आर अ नॉन पंजाबी स्पीकर, जैसे मैं थी, मैं हिंदी अच्छे से समझती थी, तो शब्द बानी में जो लाइन या जो पैराग्राफ मेरे मतलब का है, दैट इज जस्ट गोइंग टू जंप आउट एट मी, और अपने आप बगैर किसी से कुछ कहे, बगैर पूछे, बगैर सुने, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगर शब्द में नहीं मिलेगा तो उस दिन कोई सत्संग हो जाएगा जिसके थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। गुरुजी के दरबार में कोई कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं है। और किसको बुलाना है, एज आई सेड, कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, किस माध्यम से बुलाना है, ये सब गुरुजी ही मुकर्रर करते हैं। और बैक इन द डेज देयर वाज नो सोशल मीडिया, ये कोई ऐसे फोरम्स नहीं होते थे, सो इनविटेशन यूज्ड टू बी स्ट्रिक्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ। And we've seen it firsthand that in Empire State, a lot of people from that same neighborhood never used to come. And do you think that was really up to them? Guruji wasn't ready. Because कब बुलाना है, किसको बुलाना है, कितनी देर के लिए बुलाना है, और बुला के किस क्लास में एडमिशन देनी है, ये सब गुरुजी मुकर्रर करते हैं। और जब आप एक परिवार में आते हैं, तो परिवार के जो सारे सदस्य भी हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सब उसी शिद्दत से जुड़े या कनेक्ट हुए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से, माय किड्स डोंट कम और माय स्पाउस डजंट कम, एंड it's okay because in Guruji's world, it's a very personal, a very individual connection. And Guruji will decide the timing, Guruji will decide the connection, the frequency, everything. But now that we have been admitted into Guruji's school, Pathshala, to graduate to the next level, that is वो कर्म हमें भी करना है। we are in this world, we are so called Guruji Sangat. That puts a lot of responsibility on us, that as Guruji Sangat, how should we conduct ourselves? What is the message that we should be relaying? And it's like getting the antenna out to tune to the right frequency. And believe you me that gurmat bhi हर एक की किस्मत में नहीं होती. So, if you come across a skeptic or a non-believer, do not get disappointed. Do not try to, convince them. Do not get dejected. Because if they're acting a certain way, if they're thinking a certain way, it is their karam. However, do your part by enlightening them, by telling them, and then, as I said, it's between that soul and Guru Sahib himself. Every day, when there is realization, when there is awareness, it's a blessing. It's a blessing because you tend to see satsang or his miracle in pretty much everything. There is an attitude of gratitude. आप सोते जागते उठते बैठते शुक्राना करना नहीं भूलते. In fact, there is a shabad that says that people जो आपकी निंदा करते हैं, people who criticize you are actually people you should be thankful for, because one,
They're taking on your bad karmas. Second, because they're your critiques, they bring out the best in you. So the point I'm making is that the awareness that two wrongs don't make a right, that is the kind of awareness that you get in Guruji's Pathshala. Guruji would say that हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई मूर्ख के हम दास जिस किसी का भला कर सकते हो करो अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो जिस किसी में भी मानते हो गुरुजी नेवर सेड कि मेरी आराधना करो चाहे आप अल्लाह में मानते हो चाहे आप क्राइस्ट में मानते हो चाहे आप नानक में मानते हो चाहे शिव शंकर में मानते हो जिस किसी में भी आप मानते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इस दौड़ धूप से इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से 5 मिनट शुक्राना करने के लिए निकालो उस ऊपर वाले ने जिसने हमें सब कुछ दिया है it's and in a very simple and a practical way Guruji taught us this जो उनके यहाँ जो लंगर भी सर्व होता था while Guruji was in his chola it used to be a thali amongst 4 people and those 4 people do not necessarily have to be your family members. It could be any random 4 people. And again, it never used to be a coincidence because खुद हमने देखा है कि अगर आप शुगर पेशेंट हो तो आपकी थाली पे कोई वो बंदा आएगा जो probably उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या उसी सिचुएशन में है and the 2 people will end up sharing the satsang together. The concept of 4 people coming together and sharing a plate was to put this point forth that Guruji ke darbar mein everybody is an equal. Koi uncha nahi, koi neecha nahi, regardless of who you are, what your ethnic background is, what your economic strata is, does not matter. Everybody is an equal in Guruji's darbar, and that's why in the most just कहते हैं गुरुजी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं करते थे कोई डिस्कोर्स कोई प्रचार कोई भाषण नहीं कोई गाइड बुक नहीं होती थी कोई मैनुअल नहीं छपी होती थी कोई रूल्स नहीं वहां बोर्ड पे लगे होते थे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लिटरली हम सेवादार्स को देख देख कर सीखते थे एंड लंगर की महानता क्या होती है क्या महत्व होता है लंगर चाट चाट के कन कन लंगर का खत्म किया जाता था regardless of मिर्ची है तेल है 4 बार प्रसाद मिला है या नहीं मिला है it is a blessing for us. It is not just food for the body but it's actually medicine for a body because वो गुरुजी का एक लंगर ही है जो मीठा खा के शुगर पेशेंट ठीक हो जाएगा वहां कोई ग्लूटेन एलर्जी वगैरह का कुछ नहीं जो वीव सीन पीपल जो कहते थे कि ओ हम बीट नहीं खा सकते हमें उसकी एलर्जी है और वहां बैठकर अगर वो लंगर खा रहे हैं तो मजाल है कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाए सो अगेन इट्स मेडिसिन शब्द्स का आई टोल्ड यू एंड the humility that Guruji had in him. कभी कभी वो संगत के बीच में आकर जमीन पे बैठ जाते थे कभी कभी जमीन पे लेट जाते थे and we would have the opportunity to press his shoulders or hands or feet और ये देखने को काफी आश्चर्य होता था कि रोज गुरुजी back then दर्शन देते थे और संगत अर्ली मॉर्निंग तक चलती रहती थी तो ये ख्याल आता था कि क्या गुरुजी थकते नहीं है क्या गुरुजी सोते नहीं है और पूरी संगत को लंगर कराने के बाद वो अपने कमरे में जाते थे और लंगर चखते थे और फिर वापस आते थे और गुरुजी वुड से कि यही तो संगत है जो मेरी खुराक है और हम सबका कष्ट वो अपने ऊपर लेते थे बिकॉज वाइल ही वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म तो उस शरीर की लिमिटेशंस होती हैं वो बंदिशें होती हैं वो निराकार होकर गुरुजी और शक्तिशाली हो गए हैं ही इज ब्रोकन फ्री फ्रॉम ऑल दो सो कॉल्ड फिजिकल लिमिटेशंस बिकॉज
we've seen it firsthand that कैसे लोगों का माइग्रेन वो अपने ऊपर लेते थे, कैसे लोगों की टर्मिनल डिजीजेस, कैंसर, ब्लैक मैजिक he would take upon himself, and we've seen it firsthand. और फिर लोगों का कष्ट वो अपने ऊपर लेकर तब से उसको बर्न करते थे, and that used to take a toll on him because we've seen Guruji do sometimes खून की उल्टी, or sometimes Guruji would have severe headaches. So this was the love of Mahapurush, Guruji, जो हम लोगों के कर्म, हम लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते थे, and क्यों? So that he can put us on that, I guess the ultimate path of salvation. Guruji bhul chuk maaf karna, but several times he would say कि Shiv Puran padho. So, now that I've started reading Shiv Puran, I understand that is probably, that book is like the Granth or the passage to salvation. And, being with Guruji, if you truly try to understand what he would have expected from us as his Sangat, it changes our outlook and perspective on a lot of things. पहले जो चीजें bother करती थी, अब वो नहीं करती हैं. In fact, you want to give kindness to people who deserve it the least, because that mindset of tit for tat, that mindset of proving yourself to be right over others, it fades away with time. And it doesn't matter, because you are focused on the ultimate goal, which is getting closer to your guru. And हम अगर गुरुजी के हम नाखून के बराबर भी अगर हमें वहाँ जगह मिल जाए, तो ये लगेगा कि शायद जन्म सफल हो गया है. And there is so much more to share. In early 2019, I was trying for this job, and I really wanted it, because I thought that'll be like the ultimate sort of gift. And it was a remote position, good money, and I was convinced in my mind that is the best thing for me. Again, हम अपनी अक्ल लगाते हैं. So मैंने बहुत तैयारी वगैरह करनी शुरू कर दी. हालांकि मेरे को पता था that I did not even have sort of the right experience, the number of years required to take on that position. But I cleared the first round, and the second round, and the third round, and finally I got to the panel, the final round. And तब ये लगने लग गया कि इतनी दूर आई हूँ तो शायद मिल जाए. और बहुत तैयारी भी करी थी, so that because I was so focused on it, I felt it was a dream job. But to cut the long story short, वो job नहीं मिली, and I was very disappointed. So complain तो हम अभी भी करते हैं. शायद the only difference is कि complain करने की duration थोड़ी सी कम हो गई है. We bounce back quickly. So I said, why did I have to come this far? It is so disappointing. I tried so hard. And there was dejection. So in the meantime, a couple months later, I got an opportunity for another job with a different company. And I just felt that all that theory, the readiness, the preparation that I had done for this particular job came in handy for the next position, which I got. And then a couple months later, I found out that job that I was interviewing for, that position was removed. And I just sat back. I was like, oh my God, अगर मुझे वो job मिल भी जाती और 6 महीने बाद I would have been laid off, it could have been worse. But again, we are so fixated at that point in time कि हमें लगता है कि यही चीज हमें चाहिए क्योंकि यही चीज हमारे लिए अच्छी है. And it's very difficult to change that mindset. This, again, I have to emphasize on the fact that this is where your surrender comes in. That believing that अगर मेरी मर्जी का हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर गुरु की मर्जी का हो जाए तो उससे भी अच्छा है. And then last year, summer,
we found out about my dad's illness. And again, the way, Guru Sahib has been holding our hand, the way, the doctors came in, the treatment, it is nothing short of a miracle. Like every day I wake up with Shukrana because I know it could have been worse. So, satsangs are endless, endless, endless. I am just thankful that on this special day, I got an opportunity to do the thing that I enjoy the most. I can stay up the entire night just doing Shukrana, just, singing Mere Guru Ka Gungan. Thank you, Sonia Aunty, for making it possible. Shukrana to Guruji. So I think I'll wrap it up now. Sonia Aunty, are you there? I know she told me to do something while I was concluding, and I'm waiting to hear from her. But nonetheless, Jai Guruji, Shukrana Guruji. Sonia Aunty?